सिस्टम्स के बारे में. व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम? सो हाउ वी ब्रीथ. सो the first point is the respiratory system. How your body breathes. How your body breathes? Every second of every day your body takes in organ and gets its rid of carbon dioxide without you even thinking about it. Without thinking we can inhale the oxygen and exert the carbon dioxide. So that happens that the trains respiratory system, the respiratory thanks to the respiratory system. So the network of organs and structures that allow to breathe. वो ऑर्गन्स का नेटवर्क रहता है बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए. सो क्या रहता है इन द लेसन वी कैन स्टडी. सो इट एक्सप्लोर द एयर मूव्स थ्रू द यूर बॉडी. So air moves through your body, your lungs and work, and why the system is too important. It is your survival and it is everyday function. So everyday function के लिए and surviving के लिए हमें respiratory air बहुत important है ये बताएं. Next is the path of the air. What is the path of the air? The respiratory system in the body system is breathing and gas exchange. So main work is there breathing and gas exchange. Means breathing means there are inspiration, expiration, and gas exchange means the exchange of gases, that is oxygen and carbon dioxide. So in brings organ into the body is essential for every cell is make energy. So every cell make energy and removes the carbon dioxide, so that the cells are remove the carbon dioxide, a waste product made by our cells. So waste product is made by our cells. The system is includes both upper and nose, pharynx, larynx, and lower is a trachea, bronchi, lungs. It is upper is there nose, pharynx, larynx, and lower is a trachea, bronchi, and lungs, that respiratory structures. So working together they help to filter warm air and to lungs without the respiratory system of bodies, and there is to the function to properly it because it's a respiratory organ to stay alive. So next is the however air travels through the body. How air travels through the body, that is when we breathe in, inhale at the air, it's enter through the nose or mouth. When we inhale the air, first we can inhale the air that is enter into nose or mouth. So next is that travels down through a series of structure. So which structure there are travels? So first क्या होता है, हम जो एयर इनहेल करते हैं वो क्या करती है नोज़ से और माउथ से अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में. तो क्या दिया है फर्स्ट कौन से स्ट्रक्चर में जाती है, फर्स्ट नोज़ एंड नेजल कैविटी. नोज़ एंड नेजल कैविटी का फंक्शन क्या रहता है, वो क्या करता है फिल्टर्स करता है वार्म एयर को और क्या करता है मॉइस्चर द एयर करता है. नेक्स्ट फैरिंग्स. फैरिंग्स का क्या रहता है कि इट्स अ शेयर्ड पाथवे फॉर एयर एंड फूड. फैरिंग्स का दो काम रहता है, एक तो एयर का भी रहता है और फूड का भी रहता है. सो लैरिंग्स. लैरिंग्स क्या रहता है, इज अ वॉइस बॉक्स, मतलब इससे वॉइस प्रोड्यूस होती है, मीन साउंड इज प्रोड्यूस्ड, सो इट इज़ अ लैरिंग्स. सो नेक्स्ट इज ट्रकिया. व्हाट इज द ट्रकिया? दैट इज द विंड पाइप. द विंड पाइप दैट डायरेक्ट्स एयर इनटू द लंग्स. एक विंड पाइप रहता है, मतलब एक विंड की ट्यूब रहती है, वो क्या करती है हमारे बॉडी में एयर पास करने का काम करती है. नेक्स्ट इज ब्रोंका एंड ब्रोंकियोस. व्हाट इज द ब्रोंका? द ब्रांचिंग ट्यूब्स दैट कैरीज एयर डीपर इनटू द लंग्स. मतलब एक ब्रांचिंग ट्यूब्स रहते हैं हमारे बॉडी में, ब्रोंका एंड ब्रोंकियोस, वो क्या करते हैं कैरी करते हैं एयर डीप हमारे लंग्स में डीपली ये हो जाती है, इंसर्ट हो जाती है. और नेक्स्ट क्या दिया, इट्स एक्सर्ट द पर्टिकुलर प्लेस अ रोल मेकिंग श्योर एयर इज रिसीव थ्रू द लंग्स एंड क्लीन द रेडी फॉर द गैस एक्सचेंज. लंग्स का काम क्या रहता है, क्लीन करना एयर्स को और फिल्ट्रेशन करना, बिकॉज उसमें क्या रहता है एल्वियोलाइज प्रेजेंट रहते हैं. एल्वियोलाइज क्या करते हैं गैस ऑफ एक्सचेंज के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए हेल्पफुल रहते हैं. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल लंग्स. नेक्स्ट इज लंग्स. लंग्स का काम क्या रहता है, द लंग्स आर देर आर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ऑर्गन्स सो फाउंड इन यूर चेस्ट. वो क्या रहते हैं हमारे बॉडी में चेस्ट में रहते हैं, वो कैसे रहते हैं सॉफ्ट और स्पॉन्जी ऑर्गन रहता है और क्या करता है वो प्रोटेक्ट रिपकेज को प्रोटेक्ट करने का काम करता है. नेक्स्ट क्या करता है वो क्या रहता है लंग्स जो रहता है ना वो प्रोटेक्ट रहता है रिपकेज से. द राइट लंग हैज़ 3 lobes. द राइट लंग हैज़ 3 lobes एंड दैट नेक्स्ट इज that is the left lung has 2 lobes. So from the air hut and the breathes his lungs expand to drain inside the larynx. Airway branch into the similar tubes and they are the tiny air sacs called as alveoli.
सो हमारे लंग्स के अंदर क्या रहता है, एल्वोलाई। एल्वोलाई क्या रहता है, टाइनी एयर सैक्स रहते हैं। सो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इनसाइड के लंग्स के रहते हैं। सो क्या दिए, ब्रांच इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, स्मॉलर ट्यूब्स में वो डिवाइड होके जाते हैं और उधर सैक्स बनते हैं, उसे दिए। फिर क्या दिए, ब्लड वेसल सराउंड द लंग्स। ब्लड वेसल क्या करता है, सराउंड करता है लंग्स के अराउंड, और क्या करता है, कलेक्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को कलेक्ट करने का काम करता है। और क्या करता है, वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करने का काम करता है। कौन करता है, ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट इज व्हाट इज द एल्वोलाई। Alveoli is the site of gas exchange. What is the site of gas exchange? That the vary is each. Bronchioles are alveoli. इन ब्रोंक्यूल्स के अंदर क्या रहता है, एल्वोलास कंटेंट रहता है। फिर क्या एल्वोला क्या रहता है, स्मॉल स्मॉल सैक्स रहते हैं। तो क्या करते हैं, एयर सैक्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, क्या दिए, उसमें थी ओनली वन सेल थिक रहता है उसमें, बाकी के सब सेल्स जो रहते हैं वो थिन रहते हैं। ईच लंग कंटेंट मिलियंस ऑफ एल्वोलाई। Each lung how many alveoli contains, that is millions of alveoli is contains. So that providing a huge surface for air for a gas exchange. वो क्या करता है, ह्यूज सरफेस रेडी करता है फॉर द गैस एक्सचेंज के लिए। और क्या करता है, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर इनसाइड द एल्वोलाई। वो क्या करता है, ऑक्सीजन एयर इनसाइड द फ्रॉम एल्वोलाई करता है। फिर क्या पासेस थ्रू द देयर थिन वॉल्स, वो थिन वॉल से पास करता है इंटू नियर बाय कैपिलरीज तक पहुँचने का काम करता है। फिर क्या करता है, ब्लड वेसल तक। और फिर क्या दिया, एट द सेम टाइम, उसी टाइम क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड पासेस इनटू द एल्वोलाई टू बी एक्सेल्ड। उसी टाइम, दैट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो पास होता है किससे, एल्वोलाई क्या करते हैं, उसको एक्सेल्ट कर देते। मतलब इनहेलेशन एक्सहेलेशन ये साइमल्टेनियस प्रोसेस है हमारे बॉडी में। सो इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन। सो इसी बोलते हैं हम डिफ्यूजन, मतलब साइमल्टेनियसली ऑक्सीजन एंटर करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर सोलते हैं, इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। सो एट इट्स हैपन्स एवरी टेक अ योर ब्रेथ विदाउट एल्वोलाई योर बॉडी कुडंट एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन। सो उधर क्या दिया है कि एल्वोलाई के सिवाय हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इट इज़ द बेस्ट ऑर्गन एट्स गेट रीड ऑफ देयर गैसेस। सो इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए बेस्ट that air sac, that is alveoli. Next is diaphragm of your breathing muscles. So diaphragm is a large and dome shaped muscle is located on the below of the lungs. So क्या करता है, वो बिलो ऑफ द लंग्स के नीचे डायफ्राम रहता है, उससे हमें मूवमेंट पता चलती है डायग्राम की वजह से कि हमारा ब्रीदिंग रेट कैसा है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, वो हमें इससे पता चलता है। और क्या है, व्हेन यू इन्वेल द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउनवर्ड मेकिंग द चेस्ट कैविटी इज लॉन्गर। जब डायफ्राम मूव करता है तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, लॉन्गर हो जाती है। द क्रिएट्स, वो वैक्यूम क्रिएट करता है उधर। और क्या करता है, पुल्स एयर इनटू द लंग्स, वो क्या करता है, खींच के लेके आता है, एयर को खींच के लेके आता है अंदर लंग्स के अंदर। व्हेन यू एक्सेल द डायफ्राम इट्स रिलैक्सेस। जब हम एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है, ऐसा दिया है। फिर बाद में क्या दिया है, एंड मूव्स अपवर्ड पुशिंग द आउट ऑफ द लंग्स, मतलब वो ऊपर पुश करता है एयर को। एंड द इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन यूअर रिब्स एंड हेल्प्स बाय द एक्सपांडिंग। सो क्या करता है, इंटरकोस्टल मसल जो रहती है ना, वो क्या करती है, एक्सपांड करने में मदद करती है और टाइटनिंग करती है, चेस्ट की टाइटनिंग करती है। और क्या दिया है, दिस मसल मूवमेंट्स आर ऑटोमेटिक, द मूवमेंट्स आर ऑटोमेटिक। सो इट्स कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन स्टेम, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन स्टेम। सो इट इज़ दिस स्पेंड कॉन्स्टेंटली, दैट इज़ 20,000 टाइम्स अ डे। हम 20,000 टाइम्स अ डे ये काम करते हैं, रिपीटेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। सो नेक्स्ट क्या दिया है, इनहेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन। व्हाट इज द इनहेलेशन वर्सेस एक्सहेलेशन? द ब्रीदिंग इज मेकअप ऑफ टू पार्ट्स. So it is inhalation. Inhalation means breathing inside and exhalation means breathing outside. So what is the drug? During inhalation the diaphragm contracts and the chest cavity grows larger. मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है, डायफ्राम जो रहता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और क्या देता है, चेस्ट कैविटी जो रहती है ना वो लॉन्गर बन जाती है। और फिर क्या दिया, एयर रशेस इनटू द लंग्स, वो क्या करता है, फिर एयर को रश करता है लंग्स में लाने का काम करता है। फिर क्या करता है, फिलिंग द एल्वेओलाई इन ऑक्सीजन, फिर क्या होता है, एल्वेओलाई में ऑक्सीजन फिलअप होता है फ्रॉम द एयर से। फिर क्या दिया, द ब्लड ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। क्या होता है, जब ब्लड वेसल के अंदर वो जो ऑक्सीजन आता है तब क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स होता है बोल के दिया इन्होंने, और एक्सहेलेशन के टाइम पे। और क्या होता है, इंटरकोस्टल मसल आल्सो रिलैक्स हो जाती है। और फिर क्या दिया, द चेस्ट गेट स्मॉलर, बट चेस्ट क्या होती है, स्मॉलर हो जाती है।
मतलब उल्टा सिस्टम होता है इधर। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स, सो कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है पुश्ड आउट होता है लंग्स से। फिर क्या होता है, एंटायर प्रोसेस हैपन सो स्मूथली एंड क्विकली इट्स यूअरली ब्रेथ एट इज द नोटिस इट। सो हम इसके लिए नोटिस कर सकते हैं स्मूथली चल रही है या कैसी चल रही है, हम इससे नोटिस कर सकते हैं ये प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस। सो नेक्स्ट क्या दिया है, इट कीप्स यूर अलाइव एट कॉन्स्टेंटली रिफ्रेशिंग एंड द ऑर्गन इन यूर ब्लड स्ट्रीम। मतलब इससे हमें पता चलता है बॉडी अलाइव है या कैसी है। सो इट इज़ कॉन्स्टेंटली रेफरिंग द ऑक्सीजन इन यूर ब्लड स्ट्रीम, मतलब ऑक्सीजन कैसा है हमारे ब्लड स्ट्रीम में, इससे पता चलता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से। नेक्स्ट, मोर देन जस्ट ब्रीदिंग, the respiratory system has other important jobs that beyond the breathing. First is speaking, second is smelling, third is protecting, fourth is regulating blood pH level. So first is speaking. The larynx or voice box is contains the voice, so it is produces voice. So vocal box, its air passing through causes them to vibrate. Vibration is there in vocal box, so producing sound, so it is producing sound. So next is smelling. What is the smelling? The olfactory receptors in the nasal cavity detects the स्मेल्स। सो क्या करता है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो रहता है ना, वो क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, और वो क्या करता है, इनहेल एयर करता है। फिर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग में क्या होता है, जो सीलिया और म्यूकस रहता है वो क्या करता है, ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल्स को, पोलन पार्टिकल्स को, हार्मफुल गम जम्स को, स्नीजिंग को, कफिंग को और नेजल सिक्रेशंस को, और वो क्या करता है, इरिटेंट्स को क्लियर करने का काम करता है। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग ऑफ ब्लड पीएच लेवल। सो बाय कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी में, तो क्या होता है, पीएच ऑल्सो ब्लड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑल्सो मेंटेन। So pH is needed for your organs and function. pH maintenance is so much necessary for the body because of the homeostatic balance is required. So pH balance is also required. So next is how to take care of your lungs. What is the take care of the lungs? First is here how, don't smoke. First, don't smoke. Second, avoid air pollution. Third, wash your hands. Fourth, stay hydrated. First, here how, that is first, don't smoke means smoking diaphragms your lungs and airways. It's exercise regularly, it strengthens your lungs and diaphragm. स्मोक नहीं करना है हमें, एक्सरसाइज रेगुलर करना है बोल के बोला है। फर्स्ट क्या दिया है, ये दिया है। फिर सेकंड क्या दिया, अवॉइड एंड एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना है, मतलब क्यों क्या करना है, उससे क्या होता है हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा फैल जाता है, तो क्या होता है, कैंसरस कंडीशन आ जाती है। सो इसीलिए हमें एयर पोल्यूशन को अवॉइड करना है बोल के दिया। स्टे इंडोर्स एंड स्मोकी एंड डस्टी डेज, सो हमें डस्टी एंड स्मोकी एरियाज में नहीं रहना बोल के दिए। फिर कहते हैं वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, फ्रिक्वेंटली योर हैंड्स इज वॉश बिकॉज इट प्रिवेंट्स कोल्ड, फ्लू एंड इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट इज स्टे हाइड्रेटेड। So drinking water is also necessary because drinking water keeps mucus thin. क्या करता है, वाटर हम ड्रिंक करते हैं ना, तो म्यूकस को थीन करने का काम करता है और क्लियर करने का काम करता है। हमारे बॉडी का जो भी टॉक्सिन्स है वो क्लियर हो जाते हैं। और फिर क्या दिए, इट्स लंग्स मीन बेटर ब्रीदिंग एंड मोर एनर्जी। तो क्या करता है, लंग्स में बहुत सारी ब्रीदिंग आ जाती है और एनर्जी आ जाती है। सो इट मेंटेन्स द आवर इम्यून सिस्टम ऑल्सो. So how to take your lungs? First is don't smoke, second is avoid air pollution, third is wash your hands, fourth is stay hydrated. First, don't smoke, second, avoid air pollution, third is wash your hands and stay is hydrated, that is fourth. And next, what are the points is in that respiratory system? First is how we breathe, second is the respiratory system, how your body breathe, second, third is the path of the air, fourth is the how air travels through the body, second, next is the lungs, next is alveoli is a site of gas exchange, next is diaphragm, it's a breathing muscle, so next is inhalation, exhalation, next is more than just breathing and how to take care of your lungs. That is the points.